A very warm morning to all of you. This is Abhilasha Nada from Layal Public School and I am your social science teacher. So students, we have started this chapter devotional paths to the divine, and we have done the introduction part. After that, we have done the idol of a Supreme Court, and then a new kind of bhakti in South India, Nayanas and Alvas. We talked about Nayanas, those who are the devotees of Shiva, and Alvas, who are saints devoted to Vishnu, or the leaders who are the devotees of Vishnu. Okay, Nayanas and Alvas. There were 63 Nayanas who belonged to different caste backgrounds such as potters, untouchable workers, peasants, hunters, soldiers, Brahmins and chiefs. Okay? The best known among them were Apar, Sambandar, Sundarar, Manika Vasagar. There were two sets of compilations of their songs, Tevaram and Tiruvakka. These are some of the कास्ट. ठीक है, टोटल 63 नयानर्स थे जो अलग अलग कास्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे. उनमें पॉटर्स, अनटचेबल्स, वर्कर्स, पेजेंट्स, ब्राह्मण सब इंक्लूड थे. और इनमें जो सबसे जो बेस्ट माने जाते थे वो अपार, संबंदर, सुंदरार और मणिक व सगर जो थे वो माने जाते थे. ये कास्ट है. ठीक है, जैसे हमारे होते हैं ना, जैसे कि जैन हो गया, महेश्वरी हो गए, राजपूत हो गए, वैसे ही वहां पे भी जो है ये कास्ट होती है, समंदर, सुंदरार, मणिक व सगर. ठीक है, साउथ इंडिया का है तो हमें ये कुछ नेम्स है, ये कुछ कास्ट है. ठीक है, जो बेस्ट माने जाते थे. और उन्होंने कुछ सॉन्ग्स के कॉम्पिलेशंस भी किए हैं. ठीक है, सॉन्ग्स को बनाए हैं. तेवाराम एंड तिरुवक्कम जो है ये कुछ बेस्ट सॉन्ग्स है. 2 सेट्स हैं सॉन्ग्स के. There were 12 alvas. How many alvas were there? 12 alvas. 12 जो there were 12 alvas who came from equally divergent backgrounds. The best known being Peri Alvar, his daughter Andal, Tondari Dupoli Alvar, and Naman Alvar. Their songs were compiled in the Divya Prabandham. So these are how many alvas were there? 12 alvas were there. और वो भी different divergent means होता है different. वो भी different background से जो है आते थे. Now नेक्स्ट इज फिलोसफी एंड भक्ति. फिलोसफी मीन्स एथिक्स. आपके जो एथिक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फिलोसफी. Philosophy and bhakti, I already told you the meaning of bhakti. Bhakti means a person's loving devotion to his or her chosen deity. उसको हम भक्ति बोलते हैं. Philosophy means the study ethics हो गया, या फिर beliefs हो गए. Beliefs मान लीजिए, simple term रहेगा आपके लिए. Beliefs हो गया, या फिर द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज. नॉलेज की जो स्टडी होती है, ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल जो बेसिक हमारा नेचर है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फिलॉसफी. ओके, बिलीव्स बोल दीजिए. शंकरा, one of the most influential philosophers of India, was born in Kerala in the 8th century. He was an lawyer of Advaita, or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God, which is the ultimate reality. शंकराचार्य, शंकरा बहुत ही influential, बहुत ही अच्छे philosophers माने जाते हैं इंडिया के. एंड उनका बॉन्ड जो है केरला में हुआ था, 8th सेंचुरी में हुआ था. अद्वैता, ठीक है, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस, जो एकता में बिलीव करते हैं, जो समझते हैं कि हम सब एक हैं. डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस, दैट इज कि हम सब एक हैं और सबकी आत्माएं जो है एक ही होती है. और जो सुप्रीम गॉड है वो, हम सबका जो गॉड है वो सुप्रीम गॉड जो है एक ही है और यही रियलिटी है. He taught that Brahman, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. He considered the world around us to be an illusion.
he considered the world to be an illusion और माया। सब उन्होंने कहा कि ये जो वर्ल्ड है हमारा वो एक मोह माया है, ठीक है, मतलब कि it is illusion, and preached renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahman and attain salvation। उन्होंने कहा he taught that Brahma is the only and ultimate reality। Brahma it means जो God है, supreme God है, and he stressed on the adoption of the path of the knowledge to know Brahma and attain salvation। If we want to attain salvation, we have to go to the path of the knowledge to know Brahma। ऐसे पाथ में जाना पड़ेगा जहां पे हम ब्रह्मा की नॉलेज ले सके, और जो भी हमारे आसपास का जो आसपास की जो भी हमारी सराउंडिंग्स है वो क्या है, वो इल्यूजन है, वो माया है, ठीक है। इल्यूजन माया हो गया, या फिर यू कैन से कि हेल्यूसिनेशन बोल दीजिए, जब हम सेंसरी एक्सपीरियंस करते हैं जो रियलिटी में कुछ नहीं होता है, बट हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, रियलिटी में नहीं, बट हम अपने माइंड में ही उसको क्या करते हैं, जब एक्सपीरियंस करते हैं। और हिंदी में बोल तो भ्रम बोल दीजिए, ठीक है। तो वो क्या है, आपका इल्यूजन है, ठीक है। अब देखिए Ramanuja born in Tamil Nadu in the 11th century and was deeply influenced by the Alvars, मतलब विष्णु के भक्त थे। According to him, the best means of attaining salvation, मुक्ति पाने का जो बेस्ट वे है वो है हम through intense devotion to विष्णु, कि विष्णु के लिए जो हमारा प्यार है, विष्णु के लिए जो हमारा प्यार है, ठीक है, विष्णु की भक्ति करने से ही हमें मोक्ष मिल सकता है। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। जो विष्णु भगवान है वो हमें क्या करेंगे, वो हमें अपना आशीर्वाद देंगे एंड हमें अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम, हमें अपने साथ रखेंगे, हमें मुक्ति दिलाएंगे। ही प्रपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ Vishishta Dvaita or qualified oneness, in that the soul even when united with the supreme God remained distinct, ठीक है। उन्होंने विशिष्टा अद्वैता जो है, उन्होंने इस डॉक्ट्राइन को क्या किया था, प्रपाउंड किया था, उन्होंने बनाया था। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि according to his philosophy, the soul retained its identity even after uniting with Vishnu, ठीक है। हमारी जो सोल है, हमारी खुद की सोल की आइडेंटिटी होगी, ठीक है। आइडेंटिटी होगी मतलब हम खुद की, अगर हम विष्णु हमें मिल भी जाते हैं, हम यूनाइट भी हो जाते हैं विष्णु से, फिर भी हम क्या होंगे, हमारा जो ये हमारी खुद की जो आइडेंटिटी है वो बनी रहेगी। Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently। और ये जो ये रामानुजन है, उनकी जो डॉक्ट्राइन थी, उनकी जो फिलॉसफी थी, उनके जो बिलीव्स थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्या है, इंस्पायर किया है। इवन Ramanuja advocated social equality and condemned the caste based restrictions on entering temples। जो पहले क्या होता था साउथ इंडिया, स्पेशली साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वहां पे टेम्पल्स में सबको एंट्री नहीं मिलती थी, ठीक है। टेम्पल्स में सबको एंट्री नहीं मिलती थी। जो लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट जो लोग मानते थे, ठीक है, उनको एंट्री नहीं मिलती थी। कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स को, पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी को ही टेम्पल में एंट्री मिलती थी। तो रामानुजा ने क्या किया था, रामानुजा ने ही ये जो सोशल इक्वालिटी लेकर आए थे, और ये जो रिस्ट्रिक्शन थी, कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन, उसको रिमूव करने में हेल्प भी किया था रामानुजा ने, ठीक है। नाउ बसवानास विराशवैशम, बसवाना जो थे, इन्होंने भी विरा शैविशम का मतलब क्या होता है, हीरो ऑफ शिवा। विरा शिवैशम का मतलब होता है हीरो ऑफ शिवा। We noted earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship. This in turn led to a reaction that is best represented in the Virashaiva movement initiated by Baswana and his companions like Allamma Prabhu and Akka Mahadevi.
This movement began in Karnataka in the mid-12th century. The Veera Shivas argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women. They were also against all forms of ritual and idol worship. अब जो बसवाना थे, he initiated Virashaiva. Virashaiva, I already told you, it means hero of Shiva. Hero of Shiva. दिस मूवमेंट वीराशिवा मूवमेंट उन्होंने इनिशिएट किया था एंड ये कहाँ पे हुआ था? ये मूवमेंट इनिशिएट हुआ था कर्नाटका में इनिशिएट हुआ था एंड दिस मूवमेंट एडवोकेटेड फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. क्या था इस मूवमेंट का जो मेन एम था? ठीक है, जो बसवाना ने ये वीराशिवा मूवमेंट इनिशिएट किया था, उनका मेन एम क्या था? इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है? वो इक्वल हैं. और इनके कंपेनियंस मतलब इनके जो साथी कौन कौन थे जिन्होंने इस मूवमेंट में उनका साथ दिया था? अल्लामा प्रभु एंड अक्का महादेवी जो थे उनके कंपेनियंस थे, उनके साथ में उन्होंने काम किया. एंड ब्रह्मानिकल आइडियाज अबाउट कास्ट. ब्रह्मानिकल आइडियाज मतलब ही क्रिटिसाइज्ड दैट कि ये जो आपके सोशल इनइक्वालिटी है या फिर जो ये वुमेन के साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसके काफी क्रिटिक थे. वो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था. They were also against all forms of ritual and idol worship. कि जितने भी रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं या फिर जो मूर्ति पूजा होती है. आइडल का मतलब क्या है? मूर्ति हो गया. ठीक है, जो मूर्ति पूजा है वो उसका भी उन्होंने क्या किया था? क्रिटिसाइज किया था. तो बसवानास वीराशैविज्म, आपका वीराशैविज्म का मतलब मैं बता चुकी हूँ. हीरो ऑफ शिवा, शिवा के भक्त थे और उन्होंने वीराशैविज्म मूवमेंट चलाया था जिसमें कहा था कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल एंड all human beings are equal and they advocated that movement for the equality of all human beings. Okay, now वीराशैवा वचनास देखिए, कुछ जो है एक ग्लिम्स है कि क्या उनके वचन क्या थे, उनके प्रोमिसेस क्या थे. These are वचन्स और sayings attributed to बसवाना. क्या थे? कुछ देखिए. The rich will make temples for Shiva. What shall I, a poor man, do? My legs are pillars, the body the shrine, the head a cupola of gold. Listen, O Lord of the meeting rivers, things standing fall, but the moving ever shall stay. So this, what is the temple that Baswana is offering to God? ठीक है, बसवाना, बहुत सारे लोग बोलते थे कि जो आपके जो रिच हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो शिवा के लिए टेम्पल बनाएंगे, बट जो पुअर है वो क्या करेंगे? तो उनके जो लेग्स हैं वही क्या है? उनके पिलर है. जो बॉडी है वही श्राइन है, मतलब पूरी बॉडी जो है उन्हीं की जो आइडल है वही है. और जो हेड है, जो आपका थ्रोन, जो क्या बोलते हैं, जो किंग का क्राउन है वो कपोला बोलते हैं उसको. जो हेड है वही आपका क्राउन है, गोल्ड का क्राउन है. लिसन ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स. अब शिवा जो है उनके ही छोटी से जो है रिवर गंगा जो है निकलती है, ऐसा माना जाता है. तो ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स, थिंग्स स्टैंडिंग शैल फॉल बट द मूविंग एवर शैल स्टे. ठीक है, जो ये थिंग्स हैं, ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, गोल्ड वगैरह है, टेम्पल्स वगैरह जो बनते हैं, वो सब कहीं ना कहीं चले जाएंगे, बट द मूविंग एवर शैल स्टे. बट ये जो हमारी भक्ति है वो हमेशा आपके साथ रहेगी. ठीक है. Now just look at this portion written here. Yes, the Vaishnava court saints of Maharashtra such as Janeshwar, Namdeva, Eknath and Tukaram were devotees of Lord Vithala. Devotion around Lord Vithala gave rise to the Varkari sect, which lay emphasis on an annual pilgrimage to Pandharpur. The cult of Vithala, मतलब जो local people है उनको cult कहा गया. The cult of Vithala emerged as a powerful mode of devotion and was very popular amongst the people. अब Vithala जो थे, ठीक है, saints of Maharashtra बोल सकते हो आप. So 13th और 17th सेंचुरी में हुआ था. और महाराष्ट्र में जो विथाला किसको बोला गया है? विथाला जो टर्म है यूज किया गया है विष्णु के वर्शिप के लिए यूज किया गया है.
सो दे वर्शिप विठाला ऑफ पंधारपुर, पंधारपुर के जो विष्णु थे, विठाला थे, उनको वर्शिप करते थे। और जो ये वैष्णव सेंट्स थे, इंपॉर्टेंट वैष्णव सेंट कौन कौन से थे आपके, ये नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, ये जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट वैष्णव सेंट थे। और कुछ वुमेन भी थी जिसका नेम इसमें गिवन नहीं है, सखुबाई हो गया, चौकामेला हो गया, ये भी क्या है अनटचेबल, जो माहर कास्ट जो मानी जाती है, अनटचेबल कास्ट मानी जाती थी, उससे बिलोंग करती थी। और वो भी क्या है वैष्णव पोएट माने जाते थे। इन्होंने क्या रिजेक्ट किया था, दे रिजेक्टेड रिचुअल्स एंड कंपोज्ड डिवोशनल पोम्स। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो भी ये रीति रिवाज है, कस्टम्स है, पूजा अर्चना है, इन सबको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। और इन्होंने उसकी जगह भजन वगैरह जो है वो कंपोज किए। और धीरे धीरे क्या हुआ था, जो पंधारपुर है वहां की जो लोकल सिटीजन है, लोकल पॉपुलेशन है, कल्ट को मतलब बोलते हैं इनहैबिटेड, ठीक है, लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया। तो जो कल्ट ऑफ विठाला, जो लोकल पॉपुलेशन थे वो विठाला को जो बहुत ज्यादा मानते थे, एक उनका डिवोशन भी, उनकी जो भक्ति है वो भी एक बहुत पावरफुल मोड लेकर आई थी, मोड बना। और लोगों के बीच में भी बहुत इंपॉर्टेंट यू कैन से कि विठाला भक्ति जो है लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा जागृत हुई थी। इवन वैष्णव जो थे, ये वैष्णव जो थे वो जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था उसे भी नहीं मानते थे। एंड इवन दे थिंक कि हमें अपने फैमिलीज के साथ में रहना चाहिए एंड वी नीड टू सर्व, वी नीड टू हेल्प आवर फेलो ह्यूमन बींग्स, जो भी हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो हमारे नेबर्स हैं, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए। एंड दे बिलीव दैट गॉड रिसाइड्स इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल, कि गॉड जो है गॉड रिसाइड्स इन हार्ट्स ऑफ ऑल द पीपल, कि हमारे दिलों में रहते हैं, भगवान जो है हमारे दिलों में रहते हैं। एंड इन दिस वे ये जो न्यू ह्यूमैनिस्ट आइडिया था, ठीक है, ह्यूमैनिस्ट आइडिया जो था, ह्यूमैनिटी का जो आइडिया था वो एमर्ज हुआ था। ठीक है, सो द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, अभी ये वैष्णव पोइट का आपको मैंने बताया है। As the famous Gujarati saint Narsi Mehta said, they are Vaishnavas who understand the pain of others. एक गुजराती आपके सेंट है नरसी मेहता, उन्होंने कहा है वैष्णव जो है, जो ये विष्णु के भक्त हैं, जो ये विठाला के भक्त हैं, वो ही दूसरों के पेन को समझ सकते हैं। Okay, so now questioning the social order. This is an अभंग, मराठी डिवोशनल हाइम, एक पोएम बोल दीजिए, तुकाराम ने जो लिखी है। He who identifies with the battered and the beaten mark him as a saint, for God is with him. He holds every forsaken man close to his heart. He treats a slave as his own son. Says Tuka, I won't be tired to repeat again, such a man is God in person. Here is an abhang composed by चोखामेला सन। ठीक है, अब देखिए एक तो तुकाराम ने बताया और इस पोम के थ्रू, इस हाइम के थ्रू वो क्या आइडेंटिफाई करता है, वी ऑल आर द सन ऑफ वैष्णव, वी ऑल आर द सन ऑफ विठाला। ठीक है, हम जो हैं भगवान के ही बच्चे हैं और हमें भगवान जो है एक छोटे से छोटे इंसान को, सब ह्यूमन बींग्स को एक जैसे ही ट्रीट करते हैं, अपने बच्चे की तरह मानते हैं। और हमारे जो भगवान है हमारे दिल में है। एंड हियर इज एन अभंग बोला जाता है। ठीक है, अभंग आप ये समझ लीजिए कि पोम को ही बोला गया है। ठीक है, चोखामेला सन जो है उन्होंने क्या लिखा है, यू मेड अस लो कास्ट, व्हाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट, ग्रेट लॉर्ड, आवर होल लाइफ लेफ्ट ओवर फूड टू ईट, you should be ashamed of this, you have eaten in our home, how can you deny it? Chokha's son Carmela asked, why did you give me life? Now ये चोखामेला जो है, like according to this हेम अभांग, क्या समझ आ रहा है कि वो एक लो कास्ट
फैमिली में उनका बॉन्ड हुआ है और उन्होंने कहा है कि हमें लो कास्ट क्यों बनाया, और आपने खुद ने ये फैक्ट जो है फेस क्यों नहीं किया। हमारी पूरी लाइफ जो है लोगों का झूठन खाने में निकल गई, एंड आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज के लिए। आपने तो हमारे घर पे खाना खाया है, फिर भी आप इस चीज को डिनाई करते हैं। आपने हमें ऐसी लाइफ, इतनी ऐसी लाइफ क्यों दी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वैष्णव, ओके। So one more point under the bhakti movement is there. Nath Pandis, Siddhas and Yogis. A number of religious groups that emerged during this period criticized. ये नाथपंथीस जो है, नाथपंथीस, सिद्धाचार्यास और योगीस के बारे में जो बोला है, बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है? नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स दैट emerged during this period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and social order using simple logical arguments. So they were religious groups that criticized prevalent, जो भी पहले से रिचुअल्स चले आ रहे थे ना, they criticized those rituals and unequal social orders. जो ये inequality थी, इनको काफी इन्होंने क्या किया है? criticize किया है। Among them were the Nathpanthis, Siddhacharyas and Yogis, ठीक है। नाथपंथीस थे, सिद्धाचार्यस थे, योगीस थे। They advocated renunciation of the world. उन्होंने कहा कि अगर हमें वर्ल्ड को जानना है तो we have to meditate, we have to realize our own self, and we have to realize we all are one, and हमें सबको क्या चाहिए? मुक्ति पानी है। To them, the path to salvation lay in meditation on the formless ultimate reality and realization of the oneness with it. I already told you, उनके अकॉर्डिंग जो अगर हमें मोक्ष पाना है, हमें salvation पाना है, हमें इस संसार से मुक्ति पाना है, तो उसका पाथ क्या है? मेडिटेशन है। To achieve this, they advocated intense training of the mind and body through practices like yoga asanas. अब इसे अचीव करने के लिए उन्होंने कौन सी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी? कि योग आसन्स की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर दी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी, मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया। These groups became particularly popular among low caste, ठीक है। काफी लो कास्ट जो ग्रुप्स थे उसमें काफी काफी पॉपुलर रहे हैं, and their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in northern India. और northern India में काफी फेमस रहा है ये जो नाथपंथी, सिद्धाचार्यास और योगीस, ठीक है। कन्वेंशनल रिलीजन का मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल का मीनिंग होता है something which is very normal, या फिर something which is in accordance with what is generally done or believed. जो एक परंपरा से जो चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल रिलीजन, ठीक है। जैसे जो उनके हम बोलते हैं ना पारंपरिक है ये, ठीक है। तो मतलब बेस्ड अपॉन ट्रेडिशन या फिर वेदर रिलीजन एंड हिस्टोरिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो इसके काफी क्रिटिक थे वो। कौन? नाथपंथीज, योगीज एंड सिद्धाचार्यस। Okay class, so this is all about today class. So go through this chapter, read the chapter very carefully, and if you face any problem, do let me know. Thank you so much class.